So I am going to discuss about the reduced ambient air cooling system. Okay, reduced ambient air cooling system. This is somewhat different than the other bootstrap method and simple air refrigeration system. Here also the ambient air is entering into the engine. It is being rammed over here. First it is being rammed over here. Then this rammed air going to the main compressor. Main compressor, compression is taking place. From the main compressor, the compressed air is going to the combustion chamber, and combustion take place, and the exhaust gas go to the gas turbine and to give the power to the turbine, gas turbine. Now a part of this air, compressed air, is taken for the aircraft refrigeration system. What happening over here? That a part of air is taken over here, then it is going to the heat exchanger, and the ram air which is coming after ramming, that ram air is also taken in another cooling turbine, another cooling turbine. So this cooling turbine do the expansion work, and that temperature goes down, temperature and pressure goes down. That air is being used to cool the heat exchanger. So from here, that air is going directly to the cooling fan. Now here the air line inside the heat exchanger, it is going to the second cooling turbine, and it's from there the expansion taking place, and it goes to the cabin. Now the power of the second cooling turbine and the power of the first cooling turbine, they are combined with the help of a gearbox, so that if the power of one is reduced, then other may compensate that. It is provided with the help of gearbox, and the outlet is there, a cooling fan. Okay, then we have got over here that again page number 1110, you can see page number 1110. The reduced ambient air cooling system. This cooling system includes two cooling turbine and one heat exchanger, that has been already shown over there. The air reduces for the refrigeration system is bled off from the main compressor. The high pressure and high temperature air is cooled initially in the heat exchanger. The air for cooling is taken from the cooling turbine, which lowers the high temperature of the rammed air. The cooled air from the heat exchanger is passed through the second cooling turbine, from where the air is supplied to the cabin. The work done of the cooling turbine is used to derive the cooling fan through a reduced gear, which draws cooling air from the heat exchanger. The reduced ambient air cooling system is used for very high speed aircraft where the ram temperature is too high. Okay, so it is very clear from the sketch also, which I have already explained. Now here the TS diagram is given. First one, that ramming is taking place from 1 to 2 ramming, but actual compression, actual ramming is 1 to 2 dash. From 2 dash, then there is main compressor 2 dash to 3, and rammed compression is 2 dash 3 dash.
From 3 dash to 4 dash, that is cooling in the heat exchanger, and from 4 dash to 5, expansion in the expansion turbine, actual expansion 4 dash to 5 dash. From 5 dash it enters into the cabin, and at 6 it goes out. 5 to dash 6, that is the cabin temperature. Now this process 1 to represent isentropic ramming of the air. Process 1 to is the actual ramming of the air because of the internal friction and irreversibility. 1 and 2 and 1 2 dash. Process 2 dash 3 represent isotropic compression in the main compressor, and the process 2 dash 3 dash represent actual compression of the air because of the internal friction and the irreversibility. 2 dash 3 dash is the actual compression. Process 3 4 represent the cooling of the compressed air by ram air, which after passing through the first cooling turbine is led to the heat exchanger. The pressure drop in the heat exchanger is neglected. The process 4-5 represent the isentropic expansion of the air in the second cooling turbine up to the cabin pressure. The actual expansion of the air in the second cooling turbine is represented by the curve 4-5 dash. Okay. Now if Q tons of refrigeration in cooling load in the cabin, then mass of the air, that is 210 Q Cp T6 minus T5 dash. T6 minus T5 dash cabin में कूलिंग हो रहा है. Power required MCP T3 minus T2 dash compression work divided by 60 kilowatt. COP will be accordingly. COP will be 210 Q upon MACP T3 minus T2 dash, and that gives 210 Q upon P into 60. So this was the simple process. That was your reduced ambient air cooling system. Reduced ambient air cooling system. Now I am going to solve a numerical on that. I shall explain you the numerical about that. The reduced, of course it is focus is not up to the mark. The reduced ambient air refrigeration system used for an aircraft consists of two cooling turbines. Two cooling turbines are there, and heat exchanger and one air cooling fan. The speed of the aircraft is 1500 km per hour. The ambient air conditions are 0.8 bar and 10 degrees centigrade. The room efficiency may be taken as 90%. The rammed air used for cooling is expanded in the first cooling turbine and leaves it at pressure of 0.8 bar. The air bled from the main compressor at 6 bar is cooled in the heat exchanger and leaves at 100 degrees centigrade. The cabin is to be maintained at 20 degrees centigrade and 1 bar pressure. The pressure loss between the second cooling turbine and cooling cabin is 0.1. If the isentropic efficiency for main compressor and both the cooling turbine is 85 and 80% respectively, find first mass flow rate of air supplied to cabin to take a cabin load of 10 tons of refrigeration. Second, quantity of air passing through the heat exchanger if the temperature rise of the ram air is limited to 80 degrees centigrade. Third, power used to drive the cooling fan. And fourth, COP of the system. These are the things which I have to find out. Now we will see what are the given things. First we will concentrate what are the given things. So the given volume 1500 km per hour, that you will convert into meter second, 417 meter per second. P1 pressure 0.8, P1 pressure ambient air.
T1 10 degree centigrade converted into Kelvin. Efficiency of the ramming 90%. Efficiency of the compressor pressure of the P3 and P4 6 bar. T4 temperature 100 degree centigrade converted to the Kelvin. Then T6 20 degree centigrade converted to Kelvin. Then P6 is equal to 1 bar. NC compressor efficiency is 0.85. Both turbine efficiency 80%, and Q 10 TR capacity 10 TR. So we will draw the TS diagram for the reduced ambient air refrigeration system in the given condition. ठीक है, तो पहले हम उसका खींचेंगे TS डायग्राम. तो TS डायग्राम में पहले क्या है, T पर और S पर एंट्रोपी हो गया, T पर टेम्परेचर हो गया. तो एम्बियंट कंडीशन दिया 0.8 बार प्रेशर दिया हुआ है, उसको कंप्रेस कर रहे हैं हम 2.06 बार पर, लेकिन एक्चुअल कंप्रेशन हो रहा है 1.93 बार पे हो रहा है. 2 डैश से 3 डैश हम जा रहे हैं तो वो 6 बार का हो गया, टेम्परेचर 6 बार पर हो रहा है. यहाँ पर कूलिंग कर रहे हैं 3 डैश से 4 हीट एक्सचेंजर में, 4 से 5 डैश जा रहे हैं, 5 डैश दैट इज एक्सपेंशन इन कूलिंग टर्बाइन. तो फ्रॉम 4 to 5 डैश. अब बोल रहे हैं सपोज T2 dash stagnation temperature of the ambient air at entering the main compressor. T2 dash here temperature है. P2 dash pressure of the air at the end of isentropic compressor. P2 dash T2 dash, ठीक है. P2 dash stagnation pressure of the air entering into compressor. P2 dash और P2 में फ़र्क है, देखो P2 2.06 बार, P2 dash 1.93 बार. We know that T2 dash is equal to T1 V square upon 2000 CP. ये स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारा T2 dash टेम्परेचर निकालने का क्या तरीका है, T1 प्लस V स्क्वायर अपॉन 2000 इंटू CP. T1 की वैल्यू हमको मालूम है 283 दिया हुआ है हमको, T1 की वैल्यू 283 दिया हुआ है. वेलोसिटी हमको मालूम है एयर का, वेलोसिटी दिया है 417 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. 2000 हो गया, CP1 होता है. यहाँ से हमने T2 डैश की वैल्यू निकाल ली, टेम्परेचर T2 डैश निकल गया. ठीक है, अब जब टेम्परेचर T2 डैश निकल गया उसके बाद हमें अब क्या करना है वो देखना है. तो उसके बाद फिर P2 अपॉन P1 जो हो जाएगा, P2 अपॉन P1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा T2 अपॉन T1 गामा अपॉन गामा माइनस 1. ये आइडियल गैस इक्वेशन के लिए होता है. ये वैल्यू लिख दिया हमने, T2 की वैल्यू लिख दिया, T1 की वैल्यू लिख दिया, गामा की वैल्यू गामा माइनस 1, ये टोटल हमको मिल गया 2.57. तो P2 की वैल्यू हो गया P1 इंटू 2.57, P1 की वैल्यू 0.8 है, 2.57 दैट 2.06 बार आ गया. अब रैमिंग एफिशिएंसी हमको दिया हुआ है. रैमिंग एफिशिएंसी एक्चुअल राइज इन प्रेशर, आइसेंट्रोपिक राइज इन प्रेशर. एक्चुअल राइज इन प्रेशर P2 डैश माइनस P1 और आइसेंट्रोपिक राइज इन प्रेशर P2 माइनस P1. सब वैल्यू हमने लिखा. 0.9 रैमिंग एफिशिएंसी दिया हुआ, P2 डैश माइनस 0.8, 2.06 माइनस 0.8. यहाँ से P2 डैश की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे, P2 डैश की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेंगे. ठीक है, तो अब हमें देखना ये है रैमिंग का जो है हमारे पास एक्सपेंशन टरबाइन नंबर 2 है, उसमें एक्सपेंशन हो रहा है. जो हमारा दूसरा एक्सपेंशन टरबाइन उसमें एक्सपेंशन हो रहा है नीचे में, जो कि रैम्ड एयर ही हम ले रहे हैं. रैम्ड एयर ले करके ही हम उसको एक्सपेंशन कर रहे हैं. तो रैम्ड एयर जो है हमारा T2 डैश पर आ रहा है. रैमिंग करने के बाद जो हमारा रैमिंग एयर का प्रेशर हो रहा है T2 डैश, उसके बाद से उसका एक्सपेंशन हो रहा है सेकेंड टरबाइन में T2 डैश टू 1 डैश, लेकिन एक्चुअल हो रहा है T2 डैश टू T2 डबल डैश. नाउ the TS diagram for the expansion of the ram air in the first cooling turbine is shown in figure 3.23. The vertical line 2 dash 1 dash represent the isotropic cooling process and 2 dash 2 double dash represent the actual cooling process. ठीक है, एक्चुअल कूलिंग अब यहाँ पर टरबाइन दूसरा लगा हुआ ना, तो फर्स्ट टरबाइन जो कि डायरेक्ट हमारा रैमिंग एयर ले रहा है,
तो पहला तो 1 to 2 हमारा हो गया जो रैमिंग एयर हो रहा वो, फिर 1 से 2 डैश पर जो एक्चुअल प्रेशर हो रहा, चूँकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जो है वो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है, फ्रिक्शन है, तो 2 डैश पर हम पहुंच रहे हैं। अब दूसरे टरबाइन में 2 डैश से 1 डैश जो होगा आइडियल एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में 2 डैश टू 2 डैश डबल डैश पर एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर। और वो एयर जो फिर 0.8 बार पर आ जा रहा है। 0.8 बार हमारा प्रेशर जो है वो एम्बिएंट प्रेशर है। नाउ फॉर द आइसेंट्रोपिक कूलिंग प्रोसेस 2 डैश 1 डैश, 2 डैश 1 डैश पर हम देखें क्या हो रहा है। दैट इज़ 2 डैश अपॉन T1, 2 डैश अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 डैश अपॉन P1 डैश गामा माइनस 1 अपॉन गामा। यहाँ से सभी वैल्यू हमको मालूम है, P2 डैश की वैल्यू मालूम है, P1 डैश की वैल्यू मालूम है, हमने पुटअप कर दिया। तो रेशियो हमारा T2 डैश अपॉन T1 डैश 1.284। यहाँ से हम T1 डैश निकाल सकते हैं, T2 डैश हमको मालूम है, T2 डैश का वैल्यू जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, T2 डैश की 370 वैल्यू हमको T2 डैश की दी हुई है। लेट अस सर्च आउट कहाँ ये 100 373 ये दिया हुआ है, 373 वैल्यू। तो उसकी वैल्यू T2 डैश की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाले हैं बेटा, T2 डैश की वैल्यू तो हम यहाँ से निकाले हैं। यहाँ देखो T2 डैश की वैल्यू यहाँ निकाला 370 पहले पढ़ने पर, तो उस वैल्यू को हमने यहाँ पुटअप किया 370 डिवाइडेड बाई 1.284, तो हमको मिल गया T1 डैश की वैल्यू मिल गई। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्स्ट कूलिंग टरबाइन, पहले कूलिंग टरबाइन की आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इन actual increase in temperature, isentropic increase in temperature, that is T2 dash minus T2 double dash, T2 dash minus T1 dash। यहाँ से हम वैल्यू रखें 0.8 इसका इक्वल टू 370 माइनस T2 डबल डैश, 370 माइनस 288। यहाँ से T2 डबल डैश की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, T2 डबल डैश की वैल्यू मिल गई। हम आगे चलें। उसके बाद अब हमें 2-3 पर आना चाहिए। 2-3 फिगर में देखें हम 2-3 दैट इज द एक्चुअल कॉम्प्रेशन। 3-2 इज इक्वल टू P3 पर P2 डैश गामा माइनस 1 अपन गामा, वैल्यू हम जानते हैं P3 की भी, P2 डैश की वैल्यू जानते हैं, तो इस तरह से हम T3 निकाल सकते हैं T2 डैश के फॉर्म में। T2 डैश हमारा वैल्यू जो दिया है, T2 डैश की वैल्यू हमने निकाला पहले भी, T1 डैश, T2 डैश की वैल्यू जो है वो 1 से 370 दिया हुआ क्वेश्चन में, 370 नहीं यहाँ दिया, T2 डैश 370 यहाँ दिया T2 डैश, तो T2 डैश हमने वैल्यू लिख दिया है यहाँ पर, और 1.38 से मल्टीप्लाई किया, नंबर 511 K आ गया। अब हमको वी नो दैट आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर, वो मालूम है T3 माइनस T2 डैश, T3 डैश माइनस T2 डैश। यहाँ से हम T3 डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, सभी वैल्यू हमको मालूम है। 0.85 कंप्रेसर इसका एफिशिएंसी हो गया, 511 370 डिवाइडेड बाई T3 डैश माइनस 370। यहाँ से हम T3 डैश डायरेक्ट हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, तो T3 डैश हमको मालूम हो गया। सिंस देयर इज द प्रेशर ड्रॉप ऑफ 0.1 बार बिटवीन द सेकेंड कूलिंग टर्बाइन एंड द केबिन, देयरफॉर प्रेशर ऑफ द एयर एट द एग्जिट ऑफ द सेकेंड कूलिंग टर्बाइन इज, है ना, 0.1 बार का प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, तो P5 पर प्रेशर कितना हो जाएगा, P5 पर प्रेशर 0.1 बार जो रिड्यूस हो रहा है, तो प्रेशर हो गया एक्चुअली में P5 पर, दैट इज़ P5 डैश इज इक्वल टू P6 प्लस 0.01, तो प्रेशर हो जाएगा 1.1 बार। P5 का प्रेशर जो हो जाएगा वो 1.1 बार हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद फिर हम वही आइडियल गैस इक्वेशन लगाने जा रहे हैं, दैट इज़ नाउ फॉर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन फॉर एयर इन द सेकेंड कूलिंग टर्बाइन, T4 अपॉन T5, यहाँ से हमने P4 पर P5 की वैल्यू मालूम है, T4 की वैल्यू हमको मालूम है 373, न्यूमेरिकल में दिया हुआ 373,
100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया ना, 373 न्यूमेरिकल में हमको दिया हुआ है, वहाँ पर हमने वैल्यू लिखा और T5 की वैल्यू आ गई 230। वी नो दैट आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द सेकेंड कूलिंग टरबाइन, दूसरे कूलिंग टरबाइन की एफिशिएंसी क्या है, T4 माइनस T5 डैश, T4 माइनस T5 डैश डिवाइडेड बाई T4 माइनस T5 डैश, T4 माइनस T5 डैश डिवाइडेड बाई T4 माइनस T5। तो यहाँ पर हमने टरबाइन की एफिशिएंसी 0.8, 373 माइनस T5 डैश 370 माइनस 230, वो हमको 373 माइनस T5 डिवाइडेड बाई 143, तो T5 डैश की वैल्यू हमको मिल जाएगी 258.6। यहाँ तक तो मिल गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पहला पार्ट पूछा गया है जो वो है मास फ्लो रेट ऑफ द सप्लाइड टू द केबिन टू टेक इन द केबिन लोड ऑफ 10 टन्स। तो मास फ्लो रेट और 10 टन हमको दिया हुआ, तो उसका फार्मूला भी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। यहाँ पर देखो m फार्मूला हम लोग डायरेक्ट हमको मिल जाएगा, मास का फार्मूला डायरेक्ट मिलेगा। तो m इज इक्वल टू 210 CP T6 माइनस T5 डैश, एक्सपेंशन टरबाइन में 210 क्यू की वैल्यू मालूम है, T6 हमने निकाला है, T5 डैश भी हमको मालूम है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 61 kg पर मिनट आ गया। ठीक है, ये मास की वैल्यू आ गई। फिर पूछते हैं क्वांटिटी ऑफ द रैम एयर पासिंग थ्रू द हीट एक्सचेंजर। अब रैमिंग एयर जो है हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास कर रही है, दैट इज़ जो एयर जो है हमारा रैमिंग एयर जो है हमारा हीट एक्सचेंजर में कितना निकल के जा रहा है उसके बारे में पूछ रहे हैं, रैमिंग एयर कितना पास कर रहा है। तो उसके लिए रैमिंग एयर के लिए हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ द रैम एयर, क्वांटिटी ऑफ द रैम एयर तो यहाँ पूछ रहे हैं, सेकेंड पार्ट हमसे पूछ रहे हैं क्वांटिटी ऑफ द रैम एयर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ द रैम एयर पूछ रहे हैं, तो लेट क्वांटिटी ऑफ द रैम एयर पूछ रहे हैं, तो लेट वी नो दैट मास फ्लो रेट ऑफ द एयर सप्लाइड टू द केबिन, एम ए की वैल्यू निकाल चुके हैं। क्वांटिटी ऑफ द रैम एयर पासिंग थ्रू द हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर के थ्रू कितना क्वांटिटी ऑफ द रैम एयर पास हो रहा है, लेट एम आर क्वांटिटी ऑफ द रैम एयर पासिंग थ्रू द हीट एक्सचेंजर, देन द compressed air bled off at temperature T3-536 K is cooled in the heat exchanger to a temperature of T4 373 K by the ram air from the first cooling turbine at a temperature T304 K. The temperature rise of ram air in the heat exchanger is limited to 80 K. Considering perfect heat transfer in the heat exchanger. अब हीट एक्सचेंजर में बेटा दो तरह के एयर घुस रहे हैं, एक तो रैमिंग एयर घुस के आ रहा है और एक ट्यूब के थ्रू जो हमारा रेफ्रिजरेशन एयर है वो घुस के आ रहा है। तो दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है, दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है ना भाई, रैमिंग एयर और एक रैमिंग एयर हमारा जा रहा है ट्यूब के थ्रू। सी का फिगर देखो, फिगर में देखो, एक ये हीट एक्सचेंजर है, इसमें एक तो रैमिंग एयर जा रहा है हमारा, रैम एयर जा रहा है, रैम एयर आ रहा है, ये इसके थ्रू सेकेंड कूलिंग टरबाइन के थ्रू जा रहा है इसमें, और दूसरा पाइप के अंदर से जो रेफ्रिजरेटिंग एयर जा रहा है। दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो हीट एक्सचेंज हो रहा है तो इसके मैंने थर्मल बैलेंस हो जाएगा, मतलब इसके बीच में जो हीट एक्सचेंज होगा परफेक्ट हीट का जो होगा वो बैलेंसिंग ऑफ द हीट हो जाएगा, दैट इज़ द हीट गिवन बाय द रैम एयर विल बी द हीट टेकन बाय द रेफ्रिजरेटिंग एयर। दोनों के बीच में हो जाएगा ना, रेफ्रिजरेटिंग एयर जो हीट लेगा और रैम एयर हीट होगा, दोनों बैलेंस होंगे। तो MrCp80 मास ऑफ द रैम एयर, CP एयर के लिए 180 टेम्परेचर, MACP T3-T4 तो 61 T3 अभी हमने निकाला है, T3 निकाला हमने ऊपर, ये 536 माइनस T4 भी कहीं दिया हुआ है हमको, T4 की वैल्यू
T4 की वैल्यू हमको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है 373 T4 दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पर वैल्यू हमें लिख दिया वहाँ पर, तो इससे हमें निकल गया रैम एयर का पास निकल गया, क्वांटिटी ऑफ रैम एयर पासिंग थ्रू द हीट एक्सचेंजर, ये हमको डायरेक्टली यहाँ से मिल गया, ठीक है। रैम एयर का मास मिल गया हमें। अब तीसरा पार्ट पूछ रहा है क्या वो, लेट अस सी व्हाट इज द थर्ड पार्ट। तीसरा पार्ट पूछा जा रहा हमसे वो ये है, थर्ड पार्ट जो पूछा जा रहा वो ये है कि पावर यूज्ड टू डिराइव द कूलिंग फ़ैन को चलाने में क्या पावर यूज़ हो रहा है। सिंस द वर्क आउटपुट ऑफ बोथ द कूलिंग टरबाइन इज़ यूज्ड टू ड्राइव द कूलिंग फ़ैन, देयरफॉर वर्क आउटपुट फ्रॉम द फर्स्ट कूलिंग टरबाइन WT1 MACP T2 डैश माइनस T2 डबल डैश। यहाँ से MA की वैल्यू मालूम है, CP की वैल्यू मालूम है, T2 डैश माइनस T2 डबल डैश 370 माइनस 304 लिख दिया हमने, टोटल निकल गया। एंड वर्क आउटपुट फ्रॉम द सेकेंड कूलिंग टरबाइन, दो कूलिंग टरबाइन है ना, एक तो ऊपर वाला पहला है और दूसरा फिर MACP T4 माइनस T5 डैश। वहाँ से हमने निकाला 61 और 1 373 माइनस 258.6, हमारा निकल गया 6978 किलोजूल पर मिनट। नाउ कंबाइन वर्क आउटपुट फ्रॉम बोथ द कूलिंग टरबाइन, दोनों को जोड़ दिया हमने WT1 एंड WT2, तो कितना हो गया 8204 और 6978, टोटल निकल गया 15182 किलोजूल पर मिनट। एंड पावर यूज टू ड्राइव द कूलिंग टरबाइन, कूलिंग फ़ैन को पावर जो यूज़ होगा 60 से डिवाइड कर दीजिए तो 253 आ जाएगा किलोवाट में, ठीक है। COP निकालना है, COP का इक्वेशन बहुत सिंपल सा है, दैट इज़ योर 210 Q MACP T3 डैश माइनस T2 डैश। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लिखा 210 इंटू 10 61 इंटू 1 इंटू 536 माइनस 370 और COP आ गया 0.21, ठीक है। इस तरह से पूरा न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया, 0.21 टोटल वैल्यू किया। तो इस तरह से ये जो हमने आपको ये न्यूमेरिकल इसलिए करवाया कि इसमें जो डबल हीट एक्सचेंजर यूज़ हो रहा है, यहाँ पर दो कंप्रेसर यूज़ हो रहे हैं। पहला तो मेन कंप्रेसर है, दूसरा दो टरबाइन कूलिंग टरबाइन यूज़ हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर पहला कूलिंग टरबाइन है, यहाँ दूसरा कूलिंग टरबाइन है, दोनों कूलिंग टरबाइन अलग अलग है। तो जो रैम एयर आ रहा है फर्स्ट कूलिंग टरबाइन को कूल करके और तब वो हीट एक्सचेंजर में जा रहा है और फिर उसके बाद वो जो है कूलिंग फ़ैन के पास चला जा रहा है। और अंदर का जो एयर कंडीशन एयर है वो एयर जो है हमारा आ रहा है सेकेंड कूलिंग टरबाइन के पास और तब वो कैबिन में जा रहा है। लेकिन ये दोनों फर्स्ट कूलिंग टरबाइन और सेकेंड कूलिंग टरबाइन जो है वो गियर से कनेक्टेड है ताकि एक दूसरे के पावर को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। अगर इसका पावर ज़्यादा होगा इसका तो ये ज़्यादा चलेगा, इसका पावर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा चलेगा, इस तरह से। और यहाँ पर एक फ़ैन लगा हुआ है जिससे कि ये सक करके एयर को बाहर कर देता है। इस तरह से ये प्रोसेस हमारा पूरा हो जाता है। और ये प्रोसेस हमारा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत हाई स्पीड जेट्स जो होते हैं उसमें ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। और ये प्रोसेस में हमारा इक्विपमेंट भी कम से कम लगा हुआ है। सिर्फ हमारा मेन प्रॉब्लम ये कूलिंग टरबाइन दोनों लगे हुए हैं, दो कूलिंग टरबाइन लगे हुए हैं और हीट एक्सचेंजर सिर्फ एक ही है, एक हीट एक्सचेंजर है, दो कूलिंग टरबाइन लगे हुए हैं। यही इस प्रोसेस की खासियत है। और जब हाई प्रेशर हाई वेलोसिटी हाई प्रेशर का हाई स्पीड का जब यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट, देन वी गो फॉर दिस सिस्टम। वैसे हम बूट स्ट्रैप एवोपरेटिव कूलिंग सिस्टम भी हाई स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। बूट स्ट्रैप एवोपरेटिव कूलिंग सिस्टम ज़्यादा इकोनॉमिकल भी होता है और ज़्यादा एफिशिएंसी भी इसकी ज़्यादा होती है। लेकिन ये भी रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट air cooling system, air refrigeration system, and it is also used for the high speed jets. हाई स्पीड जेट्स के लिए इसको भी यूज़ करते हैं और बूट स्ट्रैप मेथड भी यूज़ करते हैं। बूट स्ट्रैप मेथड का एप्लीकेशन ज़्यादा है क्योंकि वो जैसे स्पीड बढ़ता है टेम्परेचर मिनिमम होता चला जाता है, कम से कम टेम्परेचर देता है। जबकि और सब में जो होता है उतनी एफिशिएंसी नहीं होती है, इतनी COP नहीं होती है जितना बूट स्ट्रैप एवोपरेटिव सिस्टम में होता है। इसलिए बूट स्ट्रैप एवोपरेटिव सिस्टम जो होता है प्रेफर किया जाता है कंपेयर टू एनी अदर प्रोसेस रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर कूलिंग सिस्टम। इवन देन
reduced ambient air cooling system is used for the high pressure, high speed jets. It is also used for the high speed jets. That's all. Thank you.